بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، والصلوات والتسليمات والتحيات على سيد الأنبياء الذي أرسل إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين كثيرا كثيرا. أما بعد. حضرات، کل بروز اتوار المکرم سن 1441 ہجری مطابق 21 جون کہا یہ جا رہا ہے کہ سورج گرہن ہو سکتا ہے۔ مختلف ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے محکمہ موسمیات کی طرف سے کئی دن پہلے اور آج بھی وقت کی تعیین کے ساتھ یہ کہا گیا کہ کل سورج گرہن ہو سکتا ہے۔ سورج اور چاند اللہ کی ویسی ہی مخلوق ہے جیسے دیگر تمام سیارے مخلوق ہیں، جیسے یہ زمین مخلوق ہے، اور اس زمین کی تمام چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں، اور ان تمام چیزوں میں انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے، فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں۔ تمام چیزیں جو چھوٹی اور بڑی ہیں وہ سب کی سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز چونٹی وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، جانوروں میں بڑی سے بڑی چیز ہاتھی یا مچھلی وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ چونٹی سے لے کر ہاتھی تک، تتلی سے لے کر کے مچھلی تک، تمام حیوانات اللہ کی مخلوق، اور ریت کے چھوٹے سے چھوٹے ذرے سے لے کر کے اونچے اونچے پہاڑوں تک، اور چھوٹے ستاروں سے لے کر بڑے بڑے سیاروں تک، یہاں تک کہ چاند اور سورج سب اللہ کی مخلوق ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانہ نے سورج کے بارے میں فرمایا صاف صاف یہ اللہ کی مخلوق ہے، چاند کے بارے میں فرمایا یہ اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ کے حکموں کے تابع رہ کر کے یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم کے تابع فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا لا تعبدوا للشمس ولا للقمر، نہ سورج کی پوجا پاٹ عبادت کرنا، نہ چاند کی عبادت کرنا، عبادت اس اللہ کی کرنا جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اللہ اپنی قدرتوں کا اظہار مختلف طریقوں سے کرتا ہے۔ ان طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ سورج گرہن ہوتا ہے اور کبھی چاند گرہن ہوتا ہے۔ سورج گرہن اور چاند گرہن کیوں ہوتا ہے اس کو تو علم فلکیات اور علم جغرافیہ کو پڑھ کر کے سمجھ، لیکن وہ سب اس کے ظاہری مظاہر ہیں۔ اصل چیز تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ جب فیصلہ فرماتے ہیں تو تمام محرکات ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں سورج گرہن ہوتا ہے یا چاند گرہن ہوتا ہے۔ ہمارا دین دین کامل ہے، ہمارے نبی نبی اکمل ہیں، ہمارے نبی رحمت للعالمین ہیں، ہمارے نبی قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے نبی بن کر کے آئے ہیں، اور کسی نبی نے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا۔ یہ صرف محمد رسول اللہ کی ذات اقدس ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے بار بار مختلف انداز میں یہ بات صراحتاً کہی ہے کہ میں پورے عالم کے لیے نبی ہوں، اور خود اللہ نے بھی ان کے پورے عالم کے لیے نبی ہونے کا اعلان کیا۔ خود اللہ کے نبی نے پورے عالم کے لیے نبی ہونے کا اعلان کیا۔ ان کے نبی ہونے کا اعلان تمام نبیوں نے کیا، تمام فرشتوں نے کیا، اور کائنات کی ایک ایک چیز ان کے نبی ہونے کی بشارتیں اور پیشن گوئیاں کرتی رہی ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار کمالات میں سے ایک کمال یہ ہے کہ آپ نے قیامت تک پیش آنے والے تمام معاملات کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اسی میں ایک حکم یہ بھی ہے کہ جب سورج گرہن ہو، جب چاند گرہن ہو، تو اس وقت ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں بھی سورج گرہن کے واقعات پیش آئے ہیں۔ چنانچہ حدیث کی کتابوں میں اور حدیث کی تمام کتابوں میں یہ باب ہوتا ہے کہ جب سورج گرہن ہو جائے یا چاند گرہن ہو جائے تو اس وقت کیا کیا جائے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں جب سورج گرہن ہوا تو آپ نے ایک طویل نماز ادا فرمائی۔ اس طویل نماز کو کہتے ہیں سورج گرہن کی نماز، اور اس نماز کی تفصیلات حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اس لیے جب بھی سورج گرہن یا چاند گرہن ہو تو ایمان والے تمام کے تمام ان نمازوں کے پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ سورج گرہن کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے گی، جیسے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جماعت کے ساتھ پڑھی۔
चांद ग्रहण की नमाज जमात के साथ नहीं, इनफरादी तौर पर पढ़ी जाएगी, जैसा कि उसके मुतालिक तफसीलात मौजूद हैं। सूरज ग्रहण का जब वाक़या पेश आ गया तो इत्तिफाक से उसी दिन जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़रत इब्राहीम जो अभी शीर खारगी की उम्र में थे और अपनी वालिदा मोहतरमा हज़रत मारिया किब्तिया का दूध नोश फरमा रहे थे, उस उम्र में इनकी वफ़ात हो गई। तो जब एक तरफ से सूरज ग्रहण हुआ, दूसरी तरफ से हज़रत इब्राहीम की वफ़ात हुई, तो पूरे मदीना में और आसपास के तमाम इलाकों में ये शोर मच गया कि बहुत बड़ी शख्सियत की वफ़ात हुई है, इसलिए सूरज ग्रहण हो गया। तो गया उन लोगों की सोच ये थी कि जब कोई बड़ा शख्स दुनिया से गुजर जाता है तो या तो सूरज ग्रहण का वाक़या होता है या चाँद ग्रहण का वाक़या होता है। उस वक्त अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मस्जिद नबी में खिताब फरमाया, जिसमें आपने फरमाया इन्न शम्स वल कमर आयतान मिन आयातिल्लाहि ला तनकसिबु लिमौति अहदिन, कि सूरज और चाँद अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से हैं, किसी के मरने पर न सूरज ग्रहण हो सकता है न चाँद ग्रहण हो सकता है। इस तवाहम परस्ती को आपने नफ़ी के साथ इनकार कर फरमा दिया। अलबत्ता सूरज ग्रहण के मौके पर आपने नमाज अदा फरमाई। चुनाचे मुख्तलिफ सहाबा उस नमाज को नकल करते हैं। उन्हीं में से एक सहाबी हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम जो इरशाद फरमाया, उसका तर्जमा यह है, सूरज और चाँद अल्लाह की दो अहम निशानियाँ हैं। किसी के मरने पर या किसी के पैदा होने पर इनमें न कोई ग्रहण लगता है और न इनमें कोई तब्दीली आती है। हाँ, जब तुम ये देखो कि सूरज को ग्रहण लग चुका है, ग्रहण लग चुका है, तो उस वक्त अल्लाह को याद करो, अल्लाह से दुआएं करो, नमाजों का एहतमाम करो, और ये सिलसिला तब तक तुम्हारा जारी और चालू रहना चाहिए जब तक सूरज साफ ना हो जाए, यानी ग्रहण खत्म ना हो जाए। यह हदीस बुखारी शरीफ में है, मुस्लिम शरीफ में है और हदीस की दूसरी किताबों में मौजूद है। इसलिए शरीयत इस्लामिया इस सिलसिले में जो तालीमात देती हैं, वो उन तालीमात में से एक अहम तरीन अमल ये है कि जब सूरज ग्रहण हो जाए तो जमात के साथ नमाज अदा की जाए, और इस पूरे वक्त में नमाज ही के अंदर इंसान मशगूल रहें जितने वक्त में सूरज ग्रहण रहेगा। तवील क़िरात की जाए, तवील रुकू किए जाएं, तवील सजदे किए जाएं और फिर तवील दुआ की जाए, और वो सारा वक्त जो सूरज ग्रहण का होगा वो इसी हाल में गुजारा जाए, जैसा कि जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवील नमाज, तवील रुकू, तवील सजदा, बल्कि जितनी देर आपने क़िरात फरमाई उतना ही लंबा आपने रुकू भी किया, तकरीबन उतना ही लंबा आपने सजदा भी किया। इस तरह से कि बाद हजरात थकावट की बिना पर बैठ भी गए थे, इतनी लंबी नमाज आपने पढ़ी है। उसके बाद आपने खिताब भी फरमाया और उस खिताब की तफसीलात हदीस की किताब में मौजूद हैं। बहरहाल इसी तरह से हमारे लिए हुक्म है कि हम सूरज ग्रहण की नमाज पढ़ें। सूरज ग्रहण की नमाज पढ़ने का वक्त ज़ाहिर है उसी तभी ये मरहला आएगा जब सूरज ग्रहण होगा। अब अगर हम सूरज ग्रहण के मौके पर सिर्फ तबसरे करते रहें, तब हम पतरस्ती की बातें करते रहें और तबादले ख्याल करते रहें और कहीं खिड़कियों से और कहीं पानी में उस सूरज को देखने की कोशिश करते रहें, तो जो हमें हुक्म था उस हुक्म को तो हमने नज़रअंदाज कर दिया, और जिस करने का कोई फ़ायदा नहीं है उसमें लोग मशगूल हो जाते हैं। इसलिए अफजल और सही तरीक़ा यह है कि हम सारा वक्त नमाज में गुजारें, और चूँकि मौजूदा जो सूरत हाल है, वबाई सूरत हाल, इस बिना पर मस्जिदों में तवील जमातें और बड़ी बड़ी जमातें नहीं हो सकती हैं, इसलिए अपने घरों के अंदर सलातुल कुसूफ की नमाज़ें अदा की जाएँ और जमात के साथ अदा की जाएँ। घर की मस्तूरात को नमाजों में शामिल किया जाए, बल्कि ये एक ज़रीन मौका है कि हमारी मस्तूरात, हमारी ख़वातीन शायद ज़िंदगी में पहली मरतबा और हो सकता है आखिरी मरतबा एक नमाज कुसूफ में शामिल हो सकेंगी, और उनकी ज़िंदगी में यादगार रहेगा कि हमने भी सूरज ग्रहण की नमाज अदा की है। जो हजरात नमाज पढ़ाएंगे वो तवील क़िरात करें अगर तवील सूरतें याद हों, और अगर तवील सूरत याद ना हो, जितनी सूरतें याद हों वो सारी सूरतें एक रकात में पढ़ें, फिर वो सारी सूरतें दूसरे रकात में पढ़ें। इस तरह से आपकी रकात तवील हो सकती है। मसलन फ़र्ज़ कीजिए अगर किसी शख्स को यासीन शरीफ ज़बानी याद है तो वही यासीन शरीफ वो नमाज सूरज ग्रहण की नमाज में अदा करे। किसी को सूरह रहमान या सूरह मुल्क याद है, वही सूरतें नमाज में अदा करे। और अगर ये सूरतें याद न हो तो फिर जो छोटी सूरतें हैं, अगर किसी को 10-15 सूरतें भी याद हैं, वो 10-15 सूरतें एक रकात में पढ़ें, फिर अगले रकात में वही 10-15 सूरतें पढ़ें और तवील रुको, तवील सजदा करें, और उसके बाद फिर तवील दुआ करके फारिग हो जाएं। और अगर कोई लंबी क़िरात करने वाला इमाम मुयस्सर हो या हाफिज़ हो तो फिर और ज़्यादा अच्छा होगा, वो तवील क़िरात करें।
चुनांचे हमने अपने वाजे भाइयों को देखा भी और उनके मुतालिक सुना भी कि वह नमाज कुसूफ की अदायगी में एक रकात के अंदर सूरह बकरा और दूसरे रकात के अंदर सूरह आल इमरान पढ़ा करते हैं। और हमने अपने भाई को देखा कि उन्होंने सूरह बकरा नमाज कुसूफ की नमाज में अदा की थी। एक रकात में उन्होंने 1.5 पारा पढ़ा, दूसरे रकात में 1 पारा पढ़ा और उसके बाद दुआ में मशगूल हो गए। तब तक सूरज ग्रहण का खत्म हो गया था। ये वाक़या इससे पहले यही कश्मीर में पेश आया है और करने वालों ने किया है। बहरहाल सूरज ग्रहण की नमाज घरों में पढ़ी जाए। इस नमाज का हुक्म फ़र्ज और वाजिब का नहीं है, ये सुन्नत और नफल के दर्जे का है और तवील क़िरात के साथ इस नमाज को पढ़ा जाए। सूरज ग्रहण की नमाज दर हकीकत अल्लाह की याद की एक निशानी है। चुनांचे हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बड़ी हमशीरा हजरत अस्मा बयान करती हैं और यह हदीस भी हदीस किताब में मौजूद है, बुखारी शरीफ में भी है। हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला बयान करती हैं कि एक दिन मैंने देखा कि तमाम मर्दों को मस्जिद में बुलाया गया है। मैं समझ न सकी कि ऐसा क्यों हुआ है। मैंने ये सोचा कि मेरी छोटी बहन आयशा हैं, उनको ज़रूर मालूम होगा क्योंकि वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले मोहतरमा हैं और ज़रूर उनको पता होगा कि मस्जिद में लोगों को क्यों जमा किया गया। चुनांचे वो हज़रत अस्मा कहती हैं, मैं अपने घर से चल करके हज़रत आयशा के यहाँ पहुंची तो देखा कि हज़रत आयशा नमाज में खड़ी हैं। मैंने इशारे से पूछा कि लोगों को मस्जिद में नमाज जमा क्यों किया गया है, तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इशारे से जवाब देकर ये फरमाया, ज़रा आसमान की तरफ तो देखो। हज़रत अस्मा कहती हैं, मैंने जो ही आसमान की तरफ निगाह उठाकर देखी तो मैंने देखा सूरज की रोशनी खत्म हो चुकी है, सूरज बेनूर हो चुका है, सूरज ऐसा है उसमें किरणें ही नहीं है। तो मैं हैरान होकर के कहने लगी, आयतुन, ये तो अल्लाह की अजीब निशानी है, यह तो अल्लाह की अजीब कुदरत है कि चमकते हुए सूरज को अल्लाह ने बेनूर कर दिया, इसकी वो रोशनी कहाँ चली गई। चुनांचे हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला कहती हैं, मैंने जब ये जुमला बोला ये तो अल्लाह की अजीब निशानी है, अल्लाह की कुदरतों की निशानी है, तो हज़रत आयशा ने सर के इशारे से कहा, हाँ हाँ वाक़तन ये अल्लाह की कुदरत की अजीब और हैरत अंगेज़ निशानी है। उसके बाद हज़रत अस्मा कहती हैं, मैं भी नमाज में खड़ी हो गई, लेकिन चूंकि तवील नमाज हो रही थी और सख्त गर्मियाँ थी और सूरज के बेनूर होने की भी हैबत भी तारी थी तो मुझ पर गश आने लगे। फिर हज़रत अस्मा कहती हैं, मैंने कटोरे से पानी उठा कर अपने सर पर डाला ताकि मैं नमाज में खड़ी रह सकूं और जब नमाज मुकम्मल हो गई तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद नमाज के बाद खिताब फरमाया। उस खिताब में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हें कब्रों में तुमसे कब्रों में मेरे बारे में पूछा जाएगा, तो तुम में से जो सच्चे मोमिन होंगे वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे हुआ मुहम्मदुन जाअना बिल बय्यिनाति वल हुदा फआमन्ना बिही वत्तबअनाहु वअजबनाहु, कि ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं, सच्चा दीन लेकर हमारे पास आए, हमने उन पर ईमान लाया, उनकी दावत को कबूल किया और जो उन्हें बताया उस पर हमने इत्तिबा किया। तो अल्लाह ताला शान फरमाएंगे फरिश्ते फरमाए सच्चे मोमिन हैं। और जिनको शक होगा, जिनका ईमान पुख्ता नहीं होगा, जिनके ईमान में निफाक होगा, वो कहेंगे कि हाँ सुना था लोग कहा करते थे ये मोहम्मद हैं, हमने भी लोगों की देखा देखी कह दिया था होंगे अल्लाह के नबी, लेकिन कोई दिल का यकीन नहीं था। हदीस के अल्फाज हैं, फअम्मल मोमिन अविल मुक़िन फयक़ूल हुआ मुहम्मद रसूलुल्लाह जाअना बिल बय्यिनाति वल हुदा फआमन्ना बिही वअजबनाहु वत्तबअनाहु। और जो मोमिन नहीं होंगे, या तो काफिर होंगे या मुनाफिक होंगे, कच्चे ईमान वाले होंगे, तो उसके मुतालिक हदीस में है, फअम्मल मुनाफिक अविल मुर्ताब फयक़ूल समिअना, हमने सुना लोग कहा करते थे ये नबी हैं, हमने भी लोगों के कहने पर नबी कहा, गोया हमारा दिल मुतमईन नहीं था। तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने उस वक्त ये भी फरमाया, इस मस्जिद के मेहराब में मुझे सारी जन्नत दिखाई गई और जन्नत के तमाम फल दिखाए गए। अगर मैं चाहता तो जन्नत के अंगूरों का कोई खोशा खींच लेता और तुम कयामत तक उसको खाते रहते। और मुझे जहन्नम सारी दिखाई गई, जहन्नम की आग के शोले इस तरह से भड़क रहे थे कि मुझे लगता था मेरे चेहरे को झुलसा देंगे। आपने फरमाया, आज जैसा हसीन तरीन मंजर मैंने पहले इस दुनिया में कभी नहीं देखा और आज से ज्यादा घबराहट जैसा मंजर इस दुनिया में कभी नहीं देखा। और ये सारा मंजर आपको मस्जिद के उस मेहराब में दिखाया गया है, जो मेहराब मस्जिद नबी का मेहराब नबी था। ये भी हदीस की किताब में मौजूद है। बहरहाल अल्लाह के नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूंकि नमाज कुसू पढ़ी है, हम भी नमाज कुसू पढ़ने का एहतमाम करेंगे और सदका और खैरात करने की भी तरगीब दी गई है और उसकी वजह से भी बलाएं दूर होती है। हजरात, ये तो वो अमल है जो हमें नमाज कुसूफ की अदायगी के सिलसिले में अंजाम देना है। इसमें
हज़रत सहाबी हैं हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न समरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो कहते हैं कि एक दफ़ा अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के ज़माने में सूरज ग्रहण लग गया। मैं मदीने के बाहर कहीं तीरंदाजी कर रहा था। मैंने उन तीरों को फेंका, मैं देखूं कि आज इस ऐसे मौके पर अल्लाह के नबी क्या अमल करते हैं। चुनाचे मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और मैंने देखा कि आप अलैहिस्सलाम हाथ उठाए हुए हैं, अल्लाह की हम्द, अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह की तकबीर, अल्लाह की तहलील बयान फरमा रहे हैं और दुआ और फरियाद में लगे हुए हैं। फिर आपने 2 रकात नमाज पढ़ी और तवील नमाज पढ़ी और तवील वक्त तक नमाज में मशगूल रहे, तब तक जब तक सूरज ग्रहण का सिलसिला बाकी रहा। उसके बाद हज़रत सहाबाए किराम हमेशा इस पर अमल करते रहे हैं। चुनांचे एक मरतबा हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खाने काबा के अंदर तवील नमाज पढ़ाई है जो नमाज कुसूफ थी। आज चूंकि घरों के अंदर ये नमाज अदा की जाएगी, जैसा कि इससे पहले भी अर्ज किया जा चुका, इसलिए घर की खवातीन, चाहे वो हमारी माएँ हों, हमारी बहनें हों, हमारी बेटियां हों या हमारी अजवाज हों, उनको नमाज में शामिल किया जा सकता है और जमात के साथ अपने घरों के अंदर ये नमाज अदा की जाए। और जहाँ मस्जिदों में लोग नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हैं, वहाँ वही सोशल डिस्टेंस के साथ, मास्क के साथ और एहतियाती तदाबीर के साथ चंद अफराद आएँ और मस्जिद के इमाम उनको उस पूरे वक्त में नमाज कुसूफ अदा कराएं। जिस तरह से 5 वक्ता नमाजें मस्जिदों में पढ़ी जा रही हैं बहुत थोड़ी तादाद के साथ, जिस तरह से जुमे अदा किए जा रहे हैं बहुत थोड़ी तादाद के साथ, उसी तरह से नमाज कुसूफ भी अदा किया जाना चाहिए। हजरात, कुसूफ के सिलसिले में हमारे मुआशरे में और बल्कि दुनिया के दूसरे बहुत सारे इलाकों में तरह तरह की तवाहुमाती बातें भी मशहूर और राइज हैं। मसलन हमारे इस खित्ते में बहुत सारे लोगों का तसव्वुर यह है कि अगर हामला खवातीन सूरज ग्रहण के दौरान हाथ में छुरी लेंगी तो उनके बच्चे का जिस्म जो है वो एबनॉर्मल होगा, या अगर हामला खवातीन अगर सूरज की रोशनी में आ गई तो उनके बच्चे को किसी न किसी किस्म का ज़रर पहुंचेगा, या खवातीन जो हामला खवातीन हैं वह अगर उस वक्त अपने किसी काम में मशगूल रहें तो उस मशगूलियत की वजह से उनके हमल पर उसके मुज़िर असरात पड़ेंगे। याद रखें, ये तमाम के तमाम तवाहुमाती बातें हैं, इसकी कोई हकीकत नहीं है, इसके कोई असरात ऐसे नहीं पड़ते हैं। हाँ, ये बात सही है कि अगर तिब्बी तौर पर मेडिकल साइंस या इल्म हिकमत जिस्मानी ज़रर के एतबार से कोई एडवाइजरी जारी करता है और वो ये कहता है कि साहब सूरज ग्रहण के वक्त सूरज की तरफ से कुछ रेज ऐसी आती हैं जिसकी वजह से आंखों को हो सकती है या जिस्म पर उसके असरात पड़ सकते हैं, तो तिब्बी एहतियात की बुनियाद पर, तिब्बी हिदायत की बुनियाद पर एहतियात बरती जाए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। मगर तवाहुमात की बुनियाद पर लोग तरह तरह की एहतियातें करने लगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और ईमान के बाद इस तरह के तवाहुमात का अपने आप को शिकार बनाना तौहीद के अकीदे के खिलाफ और तकदीर के अकीदे के खिलाफ है। बहरहाल, इन तमाम तवाहुमात को अपने जहन से निकाल दें। जैसे कुछ घरों में कहा जाता है हाथ में छुरी ना पकड़ी जाए, कुछ घरों में कहा जाता है उस वक्त खाना ना पकाया जाए, कुछ घरों में कहा जाता है उस वक्त कोई चीज़ काटी ना जाए, कुछ लोग कहते हैं कि उस वक्त खवातीन जो है वो घर से बाहर ना निकलें, कुछ लोग कहते हैं कि खवातीन जो है उस वक्त कंघी ना करें, कुछ कहते हैं कि खवातीन उस वक्त जो हैं वो फला काम न करें। ये तमाम की तमाम ये और इस जैसी जितनी बातें जहाँ जहाँ भी कही जाती हैं वो तमाम अज कबील तवाहुमात हैं और तवाहुमात की कोई हकीकत नहीं होती है। वहम की बुनियाद पर आदमी सोचने लगे अगर मैं ये करूँगा तो कुछ हो जाएगा। इन तमाम तवाहुमात की इस्लाम सख्ती के साथ नफी कर देता है और इससे अपने आप को बचाना चाहिए। जैसा कि अर्ज किया जा चुका, हाँ, अगर जिस्मानी ज़रर के खदशे हों और वह खदशा कौन बयान करेगा? मुस्तनद काबिल डॉक्टर या सही हकीम और इनमें तिब की बुनियाद पर, चाहे या जदीद मेडिकल साइंस की बुनियाद पर अगर ये कहा जाए और वाकतन सही तौर पर कहा जाए तो उसके बाद फिर एहतियात की जा सकती है। सूरज ग्रहण के वक्त में बहुत सारे लोगों को शौक होता है कि हम देखेंगे सूरज ग्रहण कैसा होता है और उस वक्त सूरज की हालत क्या है। तो जवाब उसका यह है कि जिस वक्त सूरज पर ग्रहण तारी हो जाता है, या तो पूरे सूरज पर ग्रहण तारी हो जाएगा तो उस वक्त पूरे सूरज की रोशनी खत्म होने के करीब होती है और उसकी किरणें भी खत्म हो जाती हैं, देखने में कोई मुज़ाकरा नहीं है। या सूरज के कुछ हिस्से को अगर ग्रहण लग जाता है तो उस वक्त कभी तो इंसान देखने में कामयाब हो जाता है और कभी देखना मुश्किल होता है। तो उस वक्त नीचे पानी का टब रखा जाता है या कहीं तालाब में देखा जाता है, तो उस वक्त तालाब के अंदर सूरज ग्रहण का वो नज़ारा देखा जा सकता है कि अल्लाह ताला शानहू कैसे इस चमकते हुए शुआओं वाले और तेज किरणों वाले सूरज को बेनूर कर देता है।
قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک شامل بتاتے ہیں، اذا الشمس کوورت، جس وقت یاد کرو اللہ کی وہ طاقت کہ جب میں اس چمکتے ہوئے سورج کو بے نور کر دوں گا۔ بہرحال بات کو ختم کرتے ہوئے بطور کنکلوڈنگ کے میں عرض کروں گا کہ کل جس وقت سے سورج گرہن کا آغاز ہوگا، نمازوں میں مشغول ہو جائیں، طویل نماز ادا کریں، شوق و ذوق کے ساتھ ادا کریں، جہری قرات کے ساتھ نماز ادا کریں، طویل سجدوں طویل رکوع کے ساتھ نماز ادا کریں، طویل دعاؤں کے ساتھ اور صدقہ و خیرات کریں۔ خاص طور پر اس لاک ڈاؤن کے دوران آپ کے آس پاس میں جہاں مفلوق الحال لوگ ہوں گے ان کو مدد کریں، ان کو کھانا بھیجوائیں، ان کو کھانے پینے کی چیزیں دیں، صدقہ کریں۔ اس کی وجہ سے بھی انسان طرح بلاؤں سے محفوظ ہوتا ہے، اور ان تمام توہمات سے اپنے آپ کو بچائیں، اور فکری طور پر بھی اور عملی طور پر بھی، یعنی ذہن میں بھی توہمات نہیں رہنے چاہیے، اور عملی طور پر بھی ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس کا تعلق توہماتی سوچ کے ساتھ ہو۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنے دین کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں جہاں جو کوتاہیاں ہوتی ہیں ایمانی اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، رویوں کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ ان تمام کوتاہیوں کو دور کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام کوتاہیوں کا ادراک اور ان کا احساس بھی نصیب ہو، اور ان کوتاہیوں کی تلافی اور ان کو دور کرنے کی صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔